Dutch in the quarterfinals, set to take on Les Bleus. The French, the third-ranked team in the world, they survived Croatia in the quarterfinals. Both those quarterfinal series were pushed to penalties after things were level after two head-to-head games. There is the manager for Spain, Luis de la Fuente. Just so many riches he has on the bench and on the field as well. You can say the same, Mo, for France. And I think the tip of the spear for France, it's still Kylian Mbappe. He has to be at the top. Stuttgart in this UEFA Nations League semifinal between Spain and France. Williams on that left-hand side as well. Just an absolutely stacked team with talent. Well, speaking of stacked, look no further. Final of the Euros last year, and the winner of this game goes to Munich to face Portugal. Cut back, Pedro Porro, his cross popped in the air. They changed instead to Blanc this evening. And the first foul of the game whistled after a few seconds. Again. Just weaving his way around. Lamine Yamal 1-on-4 at one point into the box. It comes. Zubimendi. Yamal a chance. That took a touch off a defender. It's out for a Spain corner. Just moves through the line so quick. Mbappe for company. Hands it off. Mbappe. It's Unai Simon to smother it. Nico Williams cutting it in. Nico Williams trying to get that away. Marino 2 days after his 20th birthday. Short, it's taken quick, it's cut to the top of the box. Rabiot lets it go. Theo Hernandez trying to get it under control, and it clips off the top of the bar. Well, I saw the dummy a mile away. You felt that Rabiot was going to let this one go. And Theo Hernandez enforce a ball like that from Unai Simon. Great. Mbappe then, tens of thousands of Spanish fans, Doué looking for the space, got it away. Nico Williams, Konate defending. Nico Williams got away. Mignon blocked it. He's got his body behind it. That's his second save. Spain hold it in. Zubimendi. Yamal. Got through Porro. Touch from Olise to send Adrien Rabiot coming forward. Options either side. Rabiot took it himself up over the bar. And the wrong option he ends up taking. This is what I was talking about. If you can beat that Spanish press, which they did just barely, as Olise pokes it away. But watch. Country of his birth for the very first time, and he hands it off to Lamine Yamal. Yamal gets it into the middle. Oyarzabal, he's got different options. Nico Williams roofs it, and Spain take the lead. Konate. And there can't be that many Germans here in the building, so there really must be the French just joining in the Cucurella booing. Here's Mikel Merino, and Spain make it 2! What a goal. What a goal for Spain. For Porro. And then Yamal. They can't get it off him. He clips it along. Doué brings it down. Showed too much of it to Porro. Able to get back to it though. Doué off balance. Simon saw that late. Knocked it away. No one there but Dean Housen for the rebound. Well, it's a good spot from Housen as well to be alert. Cross in, took a deflection, and Simon was able to get on the end of it. And you wonder, did that take a deflection off the foot of Mbappe? Running forward, Yamal tackles it away, but that's around the 6-yard box. And some big targets attacking it from deep here. Olise drives it in. Simon kind of flies at it, didn't get a touch on it. It's out for a goal kick. Movement up front, even just along the back line. They're having to double down in the wide area, so that leaves a man open. It's a rare opportunity for them to be starting together. Dembele's on the far side. Ousmane Dembele cutting it back. Cucurella. Simon knocked it away.
that was on frame or not. Pencil it as a fourth save. But that's a lot better. Konate, big tackle on Marino. Attack. Kalulu now. Hausen gets his body in the way. Cuts it back around him. Hooks it in. Mignon had to be alert. There's more pushing and shoving as it's going to be whipped in. France, including clipping one off the bar. Kone slides it through. Into the box. Simon smothers it. Flag is up for offside. That was a great look there by France to win it away. Dembele. Unai Simon, brick wall, fifth save. Well, that's First to the loose ball, Longley. A lot of contact, free big run up. It's going to be rolled back to him. Yamal clipping it into the box. It's knocked out in front. It's Dean Hausen. The flag is up for offside, so it would take VAR to give Hausen his first. Is the end of a dominant first half for the European champions. Coming up after the break, Rob Moe and Alexi in Los Angeles will look back at the highlights and give us their thoughts. decision making, and then Spain really grew into the game. Outside, Kalulu whips it across all the way through the 6-yard box. Mbappe's arse. Desiree Doué. Hernandez, and it's all the way through again for France. Dembele closest to it, but France with a good start attack. As Longley lost his footing, Mike Mignon able to do it off. Nico Williams, Yamal to his left, hands it off. Lamine Yamal, big tackle by Adrien Rabiot, and a penalty for Spain. Now, Rabiot can't believe this. He felt like he got... Here we go. Lamine Yamal against Mike Mignon. And it's rolled to the bottom corner. Lamine Yamal puts Spain 1 foot into Sunday's final. Williams driving in, and that shot was blocked. And yet it's Spain who have had total control. They're coming for more. Nico Williams now from Pedri. For Pedri. It's 4. It's incredible. It is complete dominance from the European champions. And so much magically better tonight for Spain against France. Mbappe driving his way through, and that's a penalty for France. Where have we seen this movie before? Prevent there being any sort of life for France in the final half an hour. And Mbappe scores. And the French roar, but they need 3 more in the next 31 minutes and change. Game. Dembele, great move. Dembele hands it off wide. Doué just wide. Boy, had that gone in, that would have really started something. He's been quiet throughout. A lot of talk about Doué. Barcola bounced up, did he use his arm? He did. Hook that cross in, and Cucurella is there. Zubimendi. We're advancing up the right. Great touch inside. Lamine Yamal, Longley defending, and it gets underneath Mignon. Yamal's second, Spain's 5th. And just in case there was any question who the best in the world is, the teenager reminding us all tonight here in Stuttgart. What can he do with it? So good, back to front. Barcola gets it in the box. That's a Stowe. And only Hausen is there, but it slices in behind. Great vision, long run. Dembele got there. It's off the post. Second time tonight. France have rattled the fick in. Mbappe just Finish for it. Oh, a heavy touch. Mbappe, a chance. Unai Simon. Speaking of guys who probably won't get enough credit in the retelling of this game, Mbappe. Cherki, why not? Oh, what a hit! Ryan Cherki on his debut with a phenomenal goal for France. Well, a little glimpse. And that's the wave now going through the Spanish supporters down to our left. Great backdoor pass. Malo Gusto rolls it in front to the own goal.
Manuel backing off. Kick save. Just enough to steer it wide and out for a Barcola. Mbappe's in the middle. Barcola, can he get across the way? It's the cutback. Koulibaly. That was the chance. He misses high. Oh, wow. Everybody around us stayed Across to Cherki on his debut. A wonderful goal. He'll clip that cross into a great area. And hold on a second. Hold on a second. France are back within a goal. It is Randal Koulibaly. It's 5-4. 9-goal thriller in Stuttgart sends Spain to the UEFA. Hi, welcome to my channel. So like and subscribe. Today we will discuss about the code writers, how can write in the form, in the West form, how can we almost say a lot of things, but we can't explain it. We can't get the idea of how can we explain it. I will discuss in both languages, Urdu and English, so you can discuss it. Okay, first of all is that अगर मैं बात करूँ अपनी कॉलेज टाइम के, so our teacher used to do one activity with our हम जब भी क्लास में आते थे तो वो एक हमेशा से कहते थे ओवरव्यू करते थे आज आप लोग क्या एक्टिविटी सीख रहे थे. सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ग्राउंड से गुजरी हूँ, बस से उतरी हूँ, ग्राउंड से गुजरी हूँ, प्ले ग्राउंड से देखा बच्चों खेलते हुए देखा. सो शी आस्क्ड अस, तो आपने जो जो देखा है उसको आप जो है ना रिटन डाउन करें, एंड देन रिटन डाउन करने के बाद आप उसके अंदर WHO के क्वेश्चंस लगाएं. व्हाई दिस हैपन, वेयर दिस हैपन, दैट हैपन, मतलब क्वेश्चंस उसमें राइज करें. सो बेस्ट क्वालिटी ऑफ थिंकिंग यही होती है, आपकी राइटिंग ये होती है कि आप जो है ना टॉपिक्स बाय टॉपिक्स और सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखें. मतलब एक सीन को आप मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस बनाना है. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो उसमें आप प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, उसमें आप जॉब रिलेटेड भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, थेरापेटिक भी होना. अच्छा, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल, ठीक है. अच्छा, आपको क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, इसमें सफिशिएंट टाइम हो, क्लियर थिंकिंग हो, रीडिंग हो, मीनिंगफुल टास्क हो, इंटरेस्ट हो, ये भी हो. A clear thinking like that we are in a daily workaholic routine के अंदर हम काफ़ी जो है वो डिप्रेशन, टेंशन्स, एंजाइटी, हर किसी चीज़ का टारगेटेड एरियाज बने हैं. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मतलब नहीं हो, या कोई ऐसा अच्छा इंसान पाएगा जो 0.5 आपके एंजाइटी डिप्रेशन में हो. मतलब किसी न किसी वे और मेथड से वो एक डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है. सो फॉर डैट आपका तो मेन टॉपिक यही हो गया कि आप जो है वो जो आप डिप्रेशन जो है जो आप चीज़ सोचते हैं, ठीक है, उसको आप रिटन डाउन कर लें. इट्स लाइक कह सकते हैं मेमोरेबल डायरी, या है एज एग्जाम्पल इसका नाम हो गया डिप्रेशन डायरी, डिप्रेसिव डायरी, कि आपके ओवरऑल रूटीन के अंदर और हेक्टिक रूटीन में अंदर आपने 9 AM मैंने ये करा, 10 AM ये, 11 AM ये, वैसे मैंने ये सोचा. इवन आई मतलब मैं मीन टाइम के अंदर खाली बैठी हूँ, लेकिन आवर माइंड इज़ कंटिन्यूसली रनिंग. सो माइंड में क्या चल रहे हैं, थॉट्स क्या आ रही हैं, यू शुड रिटन डाउन ऑन दैट. देन फिर सेकेंड डे आपने फिर दोबारा अपने न्यू रूटीन बनाए. थर्ड डे आपने, फोर्थ डे, मतलब फिफ्थ डे, मतलब 7 टिल अ वीक आपने ये काम अपना करते रहे. डेली रूटीन्स पर आप आते रहे, डेली रूटीन्स हमें. देन फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द 8th डे आपने वही जाने फर्स्ट डे आपने लिखा था, आपने वही अपने दोबारा रीड आउट करना स्टार्ट कर दिया.
सो यू थिंक कि देयर शुड बी समथिंग चेंजिंग इन दैट, मतलब काफ़ी अच्छी थ्योरी है। एक अपने आप को कभी कभी आप अपनी बातों पे हंसेंगे नहीं, यार जस्ट सो मच फुलिश पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा नहीं। अभी आप ये सोचेंगे हाउ मच टाइम आई हैव, मतलब फिजिकल टाइम आई हैव, कि मतलब मेरे पास फालतू टाइम है, आई एम बिल्डिंग माई ओन टीम वर्क, बट इट गिव यू रिलीफ, एक रिलीफ मिलेगा, सुकून मिलेगा किसी चीज़ को करने में। सो यू शुड बी अ क्लियर थिंकिंग, इस तरह से आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स क्लियर होंगे। अब बताएं कि टुडे आजकल के जो आपके जो दुनिया चल रही है वो सारी पैसों पे चल रही है, हर कोई प्रॉफिट एंड लॉस के बीच है। मतलब अमेरिकन सिस्टम बन गया है, 1 आवर वर्क हाउ मच यू हैव अर्न, 2 आवर्स वर्क हाउ मच यू हैव अर्न, मतलब हमारे जो डे हो गया वो आवरली रेट पर डिपेंड करती है। सो इट्स बेटर, लेकिन आवरली रेट से ज़्यादा हमारे आवरली रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें मिली ही नहीं है। हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी टेंशन्स में इतने बिजी स्केड्यूल्स हैं, इतने बिल्कुल हेटी इनकॉर्पोरेटेड हो गए थे, एक्यूमुलेटेड हो गए कि हमें कुछ और दिख ही नहीं रहा। सो फॉर डैट हमें एक जर्नलिस्टिक, हमें एक राइटिंग की काफ़ी ज़रूरत है। हमें ऐसा फॉर खुद के लिए हमें एक जर्नल बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो, हमारे क्लियर थिंकिंग हो। ओके, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर जर्नलिस्ट राइटिंग इज सफिशिएंट टाइम। टाइम का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस है, मतलब आपके पास कुछ भी आपके पास थॉट्स हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, आप कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ आपके थॉट्स दूसरे चल रहे हैं, यार अगर ऐसा होता तो मैं कर देती, अगर मेरे पास ऐसे वर्किंग होती, मोस्ट ऑफ गर्ल्स आर लुकिंग फॉर द बिजनेस, कि आज ऐसे स्टार्टअप होता तो मैं ये स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ऐसा सूट होना चाहिए, ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए, आर फॉर हाउस, फॉर गाड़ी, घर, मतलब एग्जैक्टली यही सब चीज़ें आजकल जो है वो चल एग्जैक्ट चीज़ें इस पे। सो वी डोंट हैव ओके। थर्ड मोस्ट इज रीडिंग कैन स्टिमुलेट यू राइट अबाउट योर ओन फैमिली और स्कूल। Reading is the most important thing in your life. How can you I think sure every house has its own library. अगर पहले 2 books ही रखी हुई हो, then you should read it. It's either in any language, Urdu, that's the language you want it. अगर वो सुनती है, so you should read it. It's आपको अपने अलावा कुछ सोचने का मौका मिलेगा। बट पीपल थिंक यार क्या यूट्यूब में सब कुछ तो गिवन है, सोशलाइजेशन भी गिवन है, पर यूट्यूब गिवन है, तो फेसबुक पर सब कुछ गिवन है, इंस्टा में सब कुछ गिवन है, बट वॉट अबाउट द पास्ट दोज थिंग्स जहाँ जो बुक्स के अंदर गए हैं, हमारी जो बुक्स हैं तो हमें पास चीज़ें बताती हैं, सिविलाइजेशन, आपके पिछले ज़माने में क्या होता था, स्टोन एज से क्या चलता आ रहा था, अगर वो हम दोबारा हम उसको लेकर क्यों नहीं आ सकते। यू शुड रीड अबाउट दिस। देखिए PDF भी मौजूद है, ई बुक्स मौजूद हैं, बट दे आर डाइवर्टिंग अवर क्रिटिकल थिंकिंग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप PDF रीड कर रहे हो, for example, the book is Rich Dad Poor Dad is a book of the business or something, और आप रीड कर रहे हो, साथ आप रीड कर रहे हो PDF में, you just scrolling it down, आपको कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया, just scroll it up,
यार जस्ट दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं, यू आर नॉट मतलब इंटरेस्टेड इन दैट पैरा, वो अलग कहानी है। बट द सेकंड इन द मीन टाइम अगर वैसे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाती है व्हाट्सएप की, फेसबुक की, your mind become diverted. You should not focus on that thing. आपका जो इंटरेस्ट रेट जो डेवलप हो रहा है एक स्टोरी को पढ़ते हुए, एक बुक को पढ़ते हुए, वो फ़ौरन ही आपके किसी और नोटिफिकेशन ने आकर आपको डाइवर्ट कर दिया। दैट्स द मेन लॉस ऑफ रीडिंग इन अ PDF फॉर्म। इस वजह से मुझे आज तक कभी PDF समझ नहीं आई है और मैंने कभी PDF रीड भी नहीं की। मैं जब भी PDF रीड करने बैठती थी, राइट नाउ आई एम करंटली ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो, पर मुझे सब्जेक्ट कभी समझ नहीं आई, लेकिन मैं कभी आज तक PDF रीड भी नहीं की और मैं PDF रीड करके बस हो जाती हूँ। सीरियसली मेरा काम ही यही है। तो PDF आप टाइम रीड करते हो, ठीक है, सही है। स्टोरीज मुझे आपसे समझ आते हैं, लोग स्टोरीज जो है वो PDF करने का चाहते हैं, डिजिटल का दौर है, PDF है ना। ये आपके इमरजेंसी सिचुएशन में, आपके ट्रैवलिंग सिचुएशन में, आप रात में ट्रैवल हो या आप कहीं पर, आप काफ़ी काम आएंगे, सही है। लेकिन मीनवाइल जब आप किसी एक फ्री टाइम पर हो, अपने स्पेयर टाइम पर हो, फिर दोबारा वही PDF में लेकर बैठे हो, सो दैट्स नॉट, आई थिंक ये चीज़ इनफ है क्या। सो यू शुड, अच्छा, you should read the books in order to become a good writer. अगर आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स रीड करने चाहिए। आजकल के उसमें ये भी आ जाता है न्यूज़पेपर मैगजीन्स का, या मतलब उसमें लोगों क्राइम पॉलिटिक्स, यू शुड गो टू अवर यंग वर्ल्ड ऑल्सो, यू शुड गो टू अ मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स का काफ़ी अच्छा मस्त चैलेंजेस आता है, कुछ बुक्स आती हैं, यू शुड गो ओवर देयर। तो अपने जो पेज अपने ई डिजिटल लाइब्रेरी से बाहर आकर आप जो है ना बुक्स की साइड पे और हार्ड कॉपीज पे ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा बेटर है रिगार्ड्स टू दिस। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द जर्नलिस्टिक राइटिंग एज अ गुड राइटर, ये कहा जाता है 4th नंबर पर पॉइंट आता है, लेकिन फॉर मी इज द फर्स्ट नंबर पॉइंट is a meaningful task. Okay, a meaningful task, you need meaningful, not an artificial writing task. You will find suggestion for such tasks in this section institute. Okay, what is a meaningful task? अच्छा, meaningful task मतलब कि आपका कोई ना कोई टास्क हो, मतलब आपने जब राइटिंग करनी हो मीनिंगफुल हो कि दूसरा वाला पढ़े तो समझे भी, लेकिन आई शुड नॉट कंसिडर दैट। ओके, फ्रॉम जब हम कुछ भी चीज़ का स्टार्टअप ले रहे होते हैं तब तो समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, अब अच्छा लिख रहे हो, बुरा लिख रहे हो, आपको नहीं पता लगता। सो फॉर डैट आप बेटर यही है कि आप जो है वो मॉडर्न वाला मीनिंगफुल टास्क से ज़्यादा अपनी लाइफ को आप एज अ टास्क पे समझ। यू हैव टू नो नॉट फॉर दी आवरली पर रेट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ना दोबारा वो आवरली पर रेट पे जाए। अच्छा, मैं ये टेस्ट करूँगी हाउ मच मनी आई विल गेट, जस्ट वाइप योर माइंड विद द मनी। आप पैसा बहुत है, अल्लाह ताला देने वाला को मज़ा आता है, छोड़ दो पैसों के पीछे, अपने माइंड को रिलैक्स करो, अपने माइंड फिर ये बात भी आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 रुपये, ये बात भी आ जाती है कि हाँ ये वो आ जाता है जिनके पास को टेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो। Every single person living in this world have a responsibility, have a different responsibility. हर किसी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो किचन की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो एक every person has a dependent responsibility। वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं तो वो खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Until we can say that until the stomach is with you now, or you have to fill the stomach, you have a responsibility. But filling more than enough your stomach will take to a patient or
something or you can be fatter. So इसका मतलब यही है कि आप जितना कपड़ा आपका साथ लगा हुआ है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि अपने को माइंड को फ्रेश करेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। मतलब अपने माइंड को फ्रेश नहीं करेंगे जब तक आप बिल्कुल सेट नहीं होंगे, आप कुछ काम नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, it doesn't like that. अगर if you are earning 2000 rupees in a month, जो आजकल के ज़माने में कहा जाता है, इट्स अ जोक ऑफ द जोक डायलॉग कि 2000 इन अ मंथ आप कमा रहे हो, इट्स अ जोक। लेकिन फॉर मी अगर आप 2000 रुपीज़ भी अगर आप मंथ के अंदर कमा रहे हो, दैट विल बी इनफ। अगर आपका स्टमक वेट इस चीज़ की इजाज़त देता है तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ, अपनी लाइफ स्टाइल कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत कि अपनी लग्जरीज़ को, अपनी चीज़ों को इतना लैविश ना बनाओ, इतनी ज़रूरी भी होता है नहीं, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा ना बनाओ कि उसको So now the fourth one is interest. All the time in the world won't help you if there is nothing to write, nothing to say. Some of the reason for writing include sending messages, keeping records, expressing feelings, or revealing information. So all the time in the world won't help you if you have nothing to write. मुझे सेंटेंस समझ वाकई में नहीं आएगा। All the time in the world won't help if there is no nothing to write, nothing to say. You are help, आप अपने लिए काफ़ी हो, you don't need anyone. You can take suggestions, आप suggestions दे सकते हो, आप suggestions दे सकते हो, आप उसको sort out कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इट मीन्स के ये है कि इफ यू आर अलोन, अगर आप राइट नहीं करोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, सो वन विल बी हियर टू हेल्प यू। जब तक आप बोलोगे नहीं किसी को, आप बताओगे नहीं, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करोगे, हाउ अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू कि आप क्या करोगे। ये बोलते हैं ना कि खुद भी तो बंदे को सोचना चाहिए ना, साथ होना चाहिए ना। पर अगर वही बंदा आपको एक्सप्रेस कर रहा हो जो आप चाह रहे हो और आप वह चीज़ ना सोच लो, तो फिर वो अलग मसला बन जाएगा। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो इट्स बेटर कि अपने इंटरेस्ट को हमेशा रिटर्न डाउन रखें। वो कहते हैं कि हमें शो नहीं करवाना कि वर्ड है, तो किसी को शर्म भी आती है, शाइनेस भी होती है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शाइनेस? इट्स योर ओन डायरी, इट्स योर ओन जर्नल, तो अपने लिए लिखो। हम लोग कहते हैं व्हाट द पीपल से राइट few minutes ago, few hours ago, I'm just thinking by making this video what the people will think about it. English trip समझ नहीं आ रही मुझे seriously. Before making this video, I just did 3 to 4 videos before that. मुझे seriously समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँगी, क्या करूँगी. But then and then just be relaxed and say whatever you want. जो भी अच्छा लगता है, जो भी लगता है, what the people say, people laugh, if the people don't say no, कुछ भी करते हैं, just say it, no problem. But the confidence, the maturity, जो आप देखोगे, जब मैंने फील करोगे कि हाँ मैंने कर दिखाया, मेरे एक शुरू से वेविश थी यार, just I should speak in front of the everyone, मैंने कर दिखाया. So that will be the most important.
मैं टॉपिक तो वही चल रहा है, लेकिन उसके अंदर रेगुलेंट आपके जो सिनेरियोज हैं उस पर ज़्यादा जो है ना वो डिस्कस करना ज़्यादा बेटर है। Some of the reasons for writing include sending messages, keeping records, expressing feelings or relating. राइटिंग के लिए सम ऑफ द रीजंस ये आता है कि हमने सेंड मैसेजेस सेंड करने होते हैं, उसमें राइटिंग लिखते हैं। एक्सप्रेसिव फीलिंग्स के लिए कि यार पहले बंदा सोच ले, अपना राइटिंग वाला वर्क पूरा कर ले। जैसे लाइक आप एग्जाम्पल है प्रपोजल सेंड होते हैं ना, कि पहले मैं पूरा अपना लिखूँ अपनी फीलिंग्स, वो जब हमारे फीलिंग ग्रैटिट्यूड होता है ना सबसे ज़्यादा, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है। और एंजाइटी, क्यूरोसिटी, नर्वस, एंजाइटी और मतलब हिचकिचाहट होती है, मैं कैसे लिखूँगी, क्या करूँगी, अच्छा चल रहा, अच्छा से लिखा नहीं लिखा, अच्छा मैं सही लग रही हूँ नहीं लग रहा, अच्छा दिस इज पिक्चर फाइन और नॉट, अच्छा ये बड़ी में सही है नहीं है। द फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शोइंग द एक्सप्रेशन टू अदर्स इज द मेन पर्पस ऑफ द राइटिंग। विलिंग इंफॉर्मेशन, विलिंग इंफॉर्मेशन मीन्स वही आ गया, आपके माइंड में थॉट क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट विद गूगल और फर्स्ट ऑप्शन है मैंने क्वेश्चन सही पूछा, गूगल सही नहीं पूछा, ठीक है। अच्छा यही मुझे आंसर चाहिए था, इस गूगल इस गेम में आ रहा था। मतलब हमारी इंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा है कि हम एक अंदर से अलग से इंट्रोवर्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द हम अपने इंट्रोवर्ट की एक्यूरेसी काफ़ी हमारी ना बहुत ज़्यादा हाई हुई है, उसको हमने अपने लो पिच पे लाना पड़ेगा तभी हम काम करें। अदरवाइज इंट्रोवर्ट की एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई ना, हम दुनिया में नहीं रह पाएंगे, बिकॉज हम अपने आप को ही इंट्रोवर्सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन और एंजाइटी, व्हाट आई फील दैट। हम खुद से सोचना, खुद से उसका जवाब ढूंढ लेना, खुद से उसको आंसर कर देना, खुद ही उस पर क्वेश्चन रेज कर देना और बाद में उसके बारे में खुद ही एक पूरी स्टोरी, एक पूरा आइलैंड क्रिएट करने के बाद बना देना और देन फिर उसको फिर सामने शो करवा देना। एंड ये नहीं सोचना कि व्हाट द अदर विल फील और व्हाट, क्या फील करेगा, उसके क्या माइंड में है, क्या उसके माइंड को थॉट्स है, ये चीज़ इससे ज़्यादा है। Practice and more practice. Yep, that's the main thing is that practice and more practice. More practice is important. जितनी आप practice करोगे, like for me, this is my first video, and I know what I'm saying. Seriously, मुझे वो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मैं सोच रही हूँ, मैं बोले आ रही हूँ. So in second video I will more practice, and third video I will be more. मतलब स्टार्ट में पैथेटिक है, देन इट विल शुड बी लेस पैथेटिक, देन इट विल लो पैथेटिक, मतलब चलता जाएगा, ठीक है। ओके, रिवाइजिंग. Students need experience in revising their work. Yeah, they are not only the students. Every people should revise their routine. जो मैं आपको फर्स्ट में बताया था कि आपको अपना डेली रूटीन जर्नल के अंदर लिखना चाहिए, and till the 8th day, and from 8th day you should revise your first day कि आप क्या बात है, you should revise your not your work, your daily task, your daily routine, and what the changes you can made it in, ये आपको टास्क करना चाहिए। Okay, so this is the सही बातें हुई, बहुत कुछ कह दिया, and 25 minutes में से बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया। So this is my first video, and inshallah next will be the more expressive and most talkative also. So wait for it, and दुआ आपको जो है कि ज़्यादा अच्छी मत जाए उससे पहले. So next one, till then, bye bye. कि आप जो है ना टॉपिक्स बाय टॉपिक्स और सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखना है, मतलब एक सीन को आप मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस बनाना है, सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट.
सो उसमें आप प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसमें आप जॉब रिलेटेड होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, थेरापेटिक होना। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल? ठीक है। अच्छा, आपको क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, इसमें सफिशिएंट टाइम हो, क्लियर थिंकिंग हो, रीडिंग हो, मीनिंगफुल टास्क हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है। A clear thinking like that we are in a daily workaholic routine के अंदर हम काफ़ी जो है वो डिप्रेशन, टेंशन्स, एंजाइटी, हर किसी चीज़ का टारगेटेड एरियाज बने हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मतलब नहीं हो, या कोई ऐसा इंसान पाएगा जो 0.5 आपके एंजाइटी डिप्रेशन में हो, मतलब किसी न किसी वे और मेथड से वो एक डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है। सो फॉर डेट आपका जो मेन टॉपिक है ये हो गया कि आप जो है वो जो आप डिप्रेशन जो आप चीज़ सोचते हैं, ठीक है, उसको आप रिटन डाउन कर लें। इट्स लाइक कह सकते हैं मेमोरेबल डायरी, या है एज एग्जाम्पल इसका नाम हो गया डिप्रेशन डायरी, डिप्रेसिव डायरी, कि आपके ओवरऑल रूटीन के अंदर और हेक्टिक रूटीन में अंदर आपने 9 AM मैंने ये करा, 10 AM ये, 11 AM ये, वैसे मैंने ये सोचा, इवन आई मतलब मैं मीन टाइम करने में खाली बैठी हूँ, लेकिन आवर माइंड इज़ कंटिन्यूसली रनिंग। सो माइंड में क्या चल रहा है, थॉट्स क्या आ रही हैं, यू शुड रिटन डाउन ऑन दैट। देन फिर सेकेंड डे आपने फिर दोबारा अपने न्यू रूटीन बनाए, थर्ड डे आपने, फोर्थ डे मतलब फिफ्थ डे मतलब आपने 7 टिल अ वीक आपने ये काम अपना करते रहे, डेली रूटीन्स पर आप आते रहे, डेली रूटीन्स हमें। देन फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द 8th डे आपने वही जाने फर्स्ट डे आपने लिखा था, आपने वही अपने दोबारा रीड आउट करना स्टार्ट कर दिया। सो यू थिंक कि देयर शुड बी समथिंग चेंजिंग इन दैट, मतलब काफ़ी अच्छी थ्योरी है। एक अपने आप को कभी कभी आप अपनी बातों पे हंसेंगे नहीं, यार जस्ट मच फुलिश पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा होंगे। अभी आप ये सोचेंगे हाउ मच टाइम आई हैव, मतलब फिजिकल टाइम आई हैव, कि मतलब मेरे पास फालतू टाइम है, आई एम रीडिंग माई ओन टीम वर्क, बट इट गिव यू रिलीफ, एक रिलीफ मिलेगा, सुकून मिलेगा किसी चीज़ को करने में। सो यू शुड बी अ क्लियर थिंकिंग, इस तरह से आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स क्लियर होंगे। अब बताएं कि टुडे आजकल के जो आपके जो दुनिया चल रही है वो सारी पैसों पे चल रही है, हर कोई प्रॉफिट एंड लॉस के बीच है, मतलब अमेरिकन सिस्टम बन गया है, 1 hour वर्क हाउ मच यू हैव अर्न, 2 hours वर्क हाउ मच यू हैव अर्न, मतलब हमारे जो डे हो गया वो आवरली रेट पर डिपेंड करती है। सो इट्स बेटर, लेकिन आवरली रेट से ज़्यादा हमारे आवरली रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें मिली ही नहीं है। हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी टेंशन्स में इतने बिजी स्केड्यूल्स हैं, इतने बिल्कुल हेक्टिक इनकॉर्पोरेटेड हो गए थे, एक्यूमुलेटेड हो गए कि हमें कुछ और हमें दिख ही नहीं रहा। सो फॉर डैट हमें एक जर्नलिस्टिक, हमें एक राइटिंग की काफ़ी ज़रूरत है, हमें ऐसा फॉर खुद के लिए हमें एक जर्नल बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो, हमारी क्लियर थिंकिंग हो। ओके, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर जर्नलिस्ट राइटिंग इज सफिशिएंट टाइम। टाइम का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस है, मतलब आपके पास कुछ भी आपके पास थॉट्स हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, आप कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ आपके थॉट्स दूसरे चल रहे हैं, यार अगर ऐसा होता तो मैं कर देती, अगर मेरे पास ऐसे वर्किंग होती, मोस्ट ऑफ अस गर्ल्स आर लुकिंग फॉर द बिजनेस, कि आज ऐसे स्टार्टअप होता तो मैं ये स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ऐसा सूट होना चाहिए, ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए,
गाड़ी घर, मतलब एग्जैक्टली यही सब चीज़ें आजकल जो है वो चल एग्जैक्ट चीज़ें इस पे, सो वी डोंट हैव ओके। थर्ड मोस्ट इज रीडिंग कैन स्टिमुलेट यू राइट अबाउट योर ओन फैमिली और स्कूल। Reading is the most important thing in your life. I think sure every house has its own library. अगर पहले 2 books ही रखी हुई हो, then you should read it. It's either in any language, Urdu, that's the language you want it. अगर वो सुनती है, so you should read it. It's अगर अपने अलावा कुछ सोचने का मौका मिलेगा। बट द पीपल थिंक यार क्या यूट्यूब में सब कुछ तो गिवन है, सोशलाइजेशन तो गिवन है, पर यूट्यूब गिवन है, तो फेसबुक पर सब कुछ गिवन है, इंस्टा में सब कुछ गिवन है, बट व्हाट अबाउट द पास्ट दोस थिंग्स जहाँ जो बुक्स के अंदर गिवन है। हमारी जो बुक्स हैं तो हमें पास चीज़ें बताती हैं, सिविलाइजेशन, आपके पिछले ज़माने में क्या होता था, स्टोन एज से क्या चलता आ रहा था, अगर वो हम दोबारा हम उसको लेकर क्यों नहीं आ सकते। यू शुड रीड अबाउट दिस। देखिए PDF भी मौजूद है, ई बुक्स मौजूद है, बट दे आर डाइवर्टिंग अवर क्रिटिकल थिंकिंग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप PDF रीड कर रहे हो, for example, the book is Rich Dad Poor Dad is a book of the business or something, और आप रीड कर रहे हो, साथ आप रीड कर रहे हो PDF में, यू जस्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन, आपको कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया, जस्ट स्क्रॉल इट अप यार, जस्ट दूसरे पे चले आते हैं, दूसरे पे चले आते हैं, यू आर नॉट मतलब इंटरेस्टेड इन दैट पैरा, वो अलग कहानी है। बट द सेकेंड इन द मीन टाइम अगर वैसे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाती है व्हाट्सएप की, फेसबुक की, योर माइंड बिकम डाइवर्ट। यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट थिंग। आपका जो इंटरेस्ट रेट जो डेवलप हो रहा है एक स्टोरी को पढ़ते हुए, एक बुक को पढ़ते हुए, वो फ़ौरन ही आपके किसी और नोटिफिकेशन ने आकर आपको डाइवर्ट कर दिया। दैट्स द मेन लॉस ऑफ रीडिंग इन अ PDF फॉर्म। जैसे मुझे आज तक कभी PDF समझ नहीं आई है और मैंने कभी PDF रीड भी नहीं की। मैं जब भी PDF रीड करने बैठती थी, राइट नाउ आई एम करंटली ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो, पर मुझे सब्जेक्ट कभी समझ नहीं आई, लेकिन मैं कभी आज तक PDF रीड भी नहीं की, और मैं PDF रीड करके बस हो जाती हूँ। सीरियसली मेरा काम ही यही है। तो PDF आप टाइम रीड करते हो, ठीक है, सही है। स्टोरीज मुझे ऐसे समझ आते हैं, लोग स्टोरीज जो है वो PDF करने का चाहते हैं, डिजिटल का दौर है, PDF है ना, ये आपके इमरजेंसी सिचुएशन में, आपके ट्रैवलिंग सिचुएशन में, आप रात में ट्रैवल हो या आप कहीं पर, आपको काफ़ी काम आएंगे, सही है। लेकिन मीनवाइल जब आप किसी एक फ्री टाइम पर हो, अपने स्पेयर टाइम पर हो, फिर दोबारा वही PDF में लेकर बैठे हो, सो दैट्स नॉट, आई थिंक ये चीज़ इनफ है क्या। So you should read the books in order to become a good writer. अगर आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स रीड करने चाहिए। आजकल के उसमें ये भी आ जाता है न्यूज़पेपर मैगजीन्स का, या मतलब उसमें लोगों क्राइम पॉलिटिक्स, यू शुड गो टू अवर यंग वर्ल्ड ऑल्सो, यू शुड गो टू मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स का काफ़ी अच्छा मस्त चैलेंजेस आता है, कुछ बुक्स आती हैं, you should go over there. So अपने ई डिजिटल लाइब्रेरी से बाहर आकर आप जो है ना बुक्स की साइड पे और हार्ड कॉपीज पे ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा बेटर है regards to this. Okay, now the most important in the journalistic writing as a good writer, ये कहा जाता है 4th नंबर पर पॉइंट आता है, लेकिन फॉर मी इज द first number point is a meaningful task. Okay,
A meaningful task that you need meaningful, not an artificial writing task. You will find suggestions for such tasks in this section things to do. Okay. What is a meaningful task? अच्छा मीनिंगफुल टास्क मतलब कि आपका कोई ना कोई एक टास्क हो, मतलब आपने जब राइटिंग में वो मीनिंगफुल हो कि दूसरा वाला पढ़े तो समझे भी, लेकिन आई शुड नॉट कंसिडर दैट। ओके, फ्रॉम जब हम कुछ भी चीज़ का स्टार्टअप ले रहे होते हैं तब तो समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, अब अच्छा लिख रहे हो बुरा लिख रहे हो, आपको नहीं पता लगता। सो फॉर डैट आप मुझे बेटर यही है कि आप जो है वो मॉडर्न वाला मीनिंगफुल टास्क से ज़्यादा अपनी लाइफ को आप एज अ टास्क पे समझ। यू हैव टू नो नॉट फॉर द आवरली पर रेट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ना दोबारा वो आवरली पर रेट पे जाए। अच्छा मैं ये टेस्ट करूँगी हाउ मच मनी आई विल गेट, जस्ट वाइप योर माइंड विद द मनी। आप पैसा बहुत है, अल्लाह ताला